দেখছেন বি নিউজ বাংলা। সামনেই আসন্ন 2021 বিধানসভা নির্বাচন। 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপকভাবে শক্তি বৃদ্ধি করার পর ভারতীয় জনতা পার্টির এবার পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গের 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন। লাগাতার টানা দুবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গোটা বাংলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি। 2021 সালের বিধানসভার লক্ষ্যে দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির নানান রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পন্ন হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বশক্তি দিয়ে 2021 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক বিভিন্ন উচ্চপদস্থ গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে আনা হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী গাজেন্দ্র সিং মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সফরে এলেন। গাজেন্দ্র সিং মহাশয়ের সফর সঙ্গে ছিলাম আমরা বি নিউজ বাংলা। এদিন তিনি সারাদিন উত্তর শহরতলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন। এদিন তিনি সকালে পানিহাটি বিধানসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এসি দত্ত রোড এবং 14 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আইসি রোডে গৃহ সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচিতে যোগদান করেন। তিনি এদিন সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের সাথে কথা বলেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির গৃহ সম্পর্ক অভিযান সংক্রান্ত লিফলেট বিলি করেন। এদিন গৃহ সম্পর্ক অভিযান চলাকালীন বি নিউজ বাংলার ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে ঠিক কি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি নেতা গাজেন্দ্র সিং মহাশয়, দেখুন। बंगाल की सरकार ने जिस तरह से बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण किया है और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया है, बंगाल जिस तरह से विकास से डपराए रखा गया, महरूम रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बंगाल की इकाई ने यह तय किया कि हम पूरे बंगाल में घर घर संपर्क कर जन जागरण अभियान चलाएंगे और न्याय अन्याय, बंगाल अब और अन्याय नहीं सहन करेगा। इसके लिए लोगों की जागृति का ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर तक जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी और ये और न्याय अन्याय का पत्रक लेकर के लोगों को जागृत करने का काम है। গৃহ সম্পর্ক অভিযান সমাপ্ত করার পর এদিন তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত উষুমপুর হিন্দু মিলন মন্দির পরিদর্শন করেন। এদিনকার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সহ বিজেপি কার্যকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন উত্তর শহরতলি জেলার বিজেপি প্রেসিডেন্ট কিশোর কর, জেনারেল সেক্রেটারি চণ্ডীচরণ রায় সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। এদিন মন্দির পরিদর্শন করার পর কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিজেপি নেতা গাজেন্দ্র সিং মহাশয় স্বদেশীর মোড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির একটি জনসভায় অংশ নেন। সেখানে তিনি আসন্ন 2021 বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। অনুরোধ করব যে এখন সময় নষ্ট না করে মন্ত্রীজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করার জন্য। ভারত মাতা কি। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अव्वल विचार के लिए काम करता है और वो विचार ये है कि देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन ला करके देश उनको सक्षम बनाना और उसके बाद उसके माध्यम से देश को सक्षम बनाना। भारत माता को जिस वैभव की अधिकारिणी वो हैं, जिस मुकाम पर उनको होना चाहिए, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनवरत संघर्ष करना, काम करना, इस विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम का आधार है, उसकी शक्ति का आधार है। और उसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय है कि समाज के सामान्य मानवी का जिस तरह से प्रोत्साहन, समर्थन, सहयोग, चाहे मौन रह करके या प्रत्यक्ष में आकर के जो मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फ्यूल देता है, ऊर्जा देता है, चलने के लिए पेट्रोल उनके किया। हजार लाखों लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी समर्पित कर दी। तमाम यातनाएं सही, बर्फ की शिलाओं पर लेटाया गया, हथेलियों अंगुलियों के नाखून जो है प्लास से खींच करके बाहर निकाल लिए गए। कोल्हू में बैल की जगह उनको जोत करके वर्षों तक यातनाएं दी गई। मन में उत्कंठ भावना थी, उस उत्कंठ भावना के आधार पर लोग लगातार संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बंगाल के इस मुक्ति के यज्ञ में, इस बंगाल को अराजकता और अनाचार के शासन से मुक्त कराने के इस यज्ञ में उसी प्रेरणा के साथ में, जिस प्रेरणा के साथ आजादी के मत वाले लड़ाई करते थे, आज लड़ाई कर रहे हैं।
देश की जनता ने, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था। 2014 में देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में शपथ लेने से पहले मोदी जी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए पार्टी के घटक दल का जिस दिन नेता चुना जाना था, उस दिन एक बात कही थी। मन में प्रश्न होता है, पत्रकार प्रश्न करते हैं कि सरकार किसके लिए काम करेगी? सरकार किसान मजदूर के लिए काम करेगी या सरकार व्यापारी व्यवसायियों के लिए काम करेगी? सरकार लेफ्ट की विचारधारा से काम करेगी या राइट विंग की विचारधारा के साथ में काम करेगी? अलग अलग तरह के प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले, शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मेरी सरकार। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने हमको सत्ता की चाबी इसलिए नहीं दी, हमको इस कुर्सी पर इसलिए नहीं बिठाया कि देश को चलाना है, हमको इसलिए इस कुर्सी पर बिठाया कि इस देश में परिवर्तन करना है, इस देश को बदलना है, इस देश को बदल करके आगे पहुंचाना है, इसलिए कुर्सी पर हमको बिठाया। हम 25 लोगों को गैस का चूल्हा आउट ऑफ टर्म कनेक्शन दे सकते थे, आउट ऑफ टर्म। और उसके लिए लोग मेरे घर के बाहर लाइन लगाते थे, मेरे ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे कि बेटी की शादी करनी है, यहाँ चूल्हा है, आगे उसके घर में गैस का कनेक्शन नहीं है, भाई साहब एक तो कूपन दे दीजिए ताकि हम उसको एक गैस का चूल्हा दिला दें। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आप सब ने देखा होगा कि गैस कनेक्शन देने वाले ने आपको ढूंढा होगा, आप उसके घर नहीं गए होंगे, वो आपको ढूंढने के लिए आपके घर आया होगा। ये परिवर्तन है। संकल्प था कि देश के हर गरीब आदमी को, जिसके घर पे कच्ची छत है, ऐसी ईंट की छत है, गारे की छत है, केलू की छत है, टिन की छत है, उसको पक्का मकान मिलना चाहिए। उनके घर में आज पक्का मकान बन गया। 1,000 लोगों के घर में पक्के मकान बने। 1,000 मकान बनता है, इसका मतलब एक गांव में 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। सरकार का 1500 करोड़ रुपए उनके गांव में लगा है। लाखों करोड़ रुपए लगा करके हर एक गरीब आदमी का घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल के गांव में मैं जब जाता हूं तो देखता हूं कि यहाँ 30% लोगों के घर में आज भी कच्चा मकान है, सिर पे कच्ची छत है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे। 30 लाख कनेक्शन जो करने थे, उसके एवज में इस पिछले एक साल में बंगाल की सरकार ने केवल 4,980 कनेक्शन किए। और इस गति से करेंगे ना तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो भी पूरे घर तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, 4 पीढ़ी तक भी। और मोदी जी कहते हैं 4 साल में पहुंचाओ। এদিনের বঙ্গ সফরে ঠাসা কর্মসূচি ছিল গাজেন্দ্র সিং মহাশয়ের। এরপর আগরপাড়া তেঁতুলতলা বিটি রোডে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী গাজেন্দ্র সিং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ঠিক কি বলেছেন দেখুন। योग्य धरती है। इस धरती ने भारत के 130 करोड़ लोग जिन पर गर्व कर सकें, सम्मान कर सकें, अपने आप को सम्मानित महसूस कर सकें। पश्चिम बंगाल जो कभी भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, वो आज भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति का केंद्र बन गया है। जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था, वो शहर कलकत्ता आज अपने कॉम्पिटिटर से, प्रतियोगी शहर मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इन तीनों से पिछड़ते हुए बहुत बहुत पीछे रह गया। जो देश का कभी इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था, वो कोलकाता आज पतन का जो मार्ग पिछले 5 दशक से चल रहा है। 10 वर्ष पूर्व उस अराजकता को, के शासन को चुनौती देते हुए समाप्त करने के लिए मां, माटी और मानुष का नारा लेकर के आई पॉलिटिकल पार्टी को बंगाल की जनता ने अपनी आंखों पर बिठा करके, अपने सर पे बिठा करके सत्ता की चाबी सौंपी थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10 वर्षों में न तो ये सरकार मां के साथ में न्याय कर पाई है, न माटी के साथ में न्याय कर पाई है, न बंगाल के मानुष के साथ में ही न्याय कर पाई है। ये कहने में भी अपने आप में बहुत कष्ट होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी, उस दृष्टिकोण से भी देश में सबसे ज्यादा लापता होने की घटनाओं में भी सबसे ज्यादा घटनाओं के साथ 1 नंबर पर है। गैंग रेप और एसिड अटैक की दृष्टि से भी देश में पहली पायदान पर है। और एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी ये पश्चिमी बंगाल ऐसे सारे केसेस में सबसे कम कार्रवाई होने वाला प्रदेश है। और यही कारण है
कि बंगाल की सरकार ने कि जनता को ये जानने का अधिकार है। मैं आप सब चैनल्स के माध्यम से ये सरकार से कहना चाहता हूं कि बंगाल के भद्रलोक ये जानना चाहते हैं कि बंगाल में जो अपराध हैं उन अपराधों की परिणति क्या हो रही है, कितने लोगों को सजा हो रही है, इसके आंकड़े खुले करने चाहिए। विकास के हर एक पैमाने पर जो प्रदेश पहले देश का अग्रणी प्रदेश हुआ करता था, आज हर एक पैमाने पर पिछड़ा है। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई है उनमें से अधिकांश योजनाओं को या तो लागू नहीं किया गया, यदि लागू किया है तो उनको नाम बदल करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए केवल अपने कार्यकर्ताओं या अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करने की दृष्टि से उनका उपयोग किया गया। साथ में ये सरकार न्याय नहीं कर पाई। बंगाल की धरती जो असीम संभावनाओं की धरती है, अपरिसीमित संभावनाओं की धरती है, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लेकर के सांस्कृतिक ग्रोथ तक सब तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वृद्धि विकास के बजाय यहां ये सब कुछ सिमटता जा रहा है। जो बंगाल कभी दुनिया में होने वाले किसी भी अपराध या अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया करता था, वियतनाम पर अमेरिका द्वारा हमला किए जाने की प्रतिक्रिया जिस बंगाल में होती थी, आज वो अपने ही नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में भी आवाज वहां नहीं उठ पाती। बंगाल की इस भूमि, इस माटी के प्रति भी ये सरकार डिलीवर करने में फेल हुई है। बंगाल के लोग, जिनके लिए ये टर्म काम में लिया जाता था बंगाली भद्रलोक, बंगाल का भद्र पुरुष, जो पूरे विश्व भर में अपनी इंटेलेक्चुअल पहचान रखता था, आज वो पहचान खोती जा रही है और बंगाल को पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए, अपराध के राजनीतिकरण के लिए, क्राइम के पॉलिटिसाइजेशन के लिए और या शासन व्यवस्था के राजनीतिकरण के लिए, गवर्नेंस का पॉलिटिसाइजेशन करने के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व भर में उनकी ये पहचान बनी है। अगर किसी एक प्रदेश में आता है तो वो प्रदेश पतन के गर्त में जाता है। दुर्भाग्य से इस टीएमसी और ममता दीदी की सरकार में ये तीनों ही दोष पश्चिमी बंगाल में आए। अम्फान और कोरोना से जब दोहरी मार बंगाल के लोगों पर पड़ी थी, उस समय जो केंद्र ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो सहायता दी, उस राशन सामग्री का अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए दुरुपयोग किया गया और उसके अतिरिक्त अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई 2700 करोड़ रुपए की राशि में भी भ्रष्टाचार हुआ। अंततः हाईकोर्ट को इंटरवीन करके और उसमें सीएजी की इंक्वायरी कराने का निर्देश देना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, दीदी, सीएजी इंक्वायरी थे, ये तो भाई कहनो, इतना डर क्यों है आपको? लोग निरपराध हैं, आपके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो क्यों कर जाकर के आप हायर कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ अपील दायर करने की आवश्यकता पड़ी है? अपनी परीक्षा दीजिए, अग्नि परीक्षा देकर के बाहर निकलिए। यदि आप के लोग निरपराध हैं तो भारत की न्याय प्रणाली जो है, न्याय व्यवस्था निश्चित रूप से आपके साथ में न्याय करेंगे। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, हिंदी में एक कहावत होती है। और इन लोगों ने, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और अपने इस भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण को के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बेजा कार्रवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक विकास के दृष्टिकोण से चर्चा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की, उनमें से जैसा मैंने कहा अधिकांश को लागू नहीं किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि अभी 3 दिन पहले माननीय मोदी जी ने एक खटका दबा करके देश के 9 करोड़ 5 लाख किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किया। क्या बंगाल का किसान इसका हकदार नहीं है? बंगाल में 70 लाख किसान हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। परसों के दिन बंगाल के किसान के घर में कुल मिलाकर के 1400 करोड़ रुपया आना चाहिए था। पिछले एक साल में 4200 करोड़ रुपए किसान, बंगाल के किसानों के घर में आना चाहिए। उनके बेटे के बच्चों के मुंह में जाने का, अन्न जाने का रास्ता था। वो गरीब आदमी के बच्चे का इलाज हो, उसके माँ बाप का इलाज हो सके, उसकी पत्नी बीमार हो जाए, उसका इलाज हो सके, इस दृष्टिकोण से योजना प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत।
पूरे देश के करोड़ों लोगों को, करोड़ों गरीब लोगों को लिए वो एक संबल बना है। वो बीमारी की चिंता से, परिवार में व्यक्ति बीमार हो जाएगा इसकी चिंता से भयमुक्त हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल का गरीब इसका अधिकारी नहीं है? क्यों करके उसको इससे महरूम किया गया? इसका जवाब जनता जानना चाहती है बंगाल की सरकार से और आदरणीय ममता दीदी से। आज माननीय मोदी जी ने जो है एक योजना प्रारंभ की। आज देश में जब 2019 में मोदी जी ने घोषणा की थी कि देश के हर एक घर को पीने का पानी पहुंचाएंगे, पूरे देश भर के 19 करोड़ ग्रामीण आवास में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचा था 70 साल के सारे सरकारों के एफर्ट्स के बावजूद भी। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि कोरोना के आपदा होते हुए भी पिछले 15 महीने में हमने 3 करोड़ नए घरों तक कनेक्शन करने में कामयाबी पाई है। 1 लाख कनेक्शन डेली कर रहे हैं देश में, और आज वो आंकड़ा जो 16% था वो 32% के पास पहुंच गया, केवल 1 साल के कालखंड में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी। बंगाल में 1 करोड़ और 62 लाख कुल मिलाकर के ग्रामीण आवास हैं, 1.62 करोड़, और 70 साल तक सरकार रहने के बावजूद भी, 10 साल टीएमसी की सरकार, 35 साल तक, 34 साल तक उससे पहले कम्युनिस्ट सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार, उसके बावजूद भी देश में अगर सबसे कम परसेंटेज कहीं है, लेस देन 6 लाख कनेक्शंस जो हैं केवल पूरे बंगाल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में। भारत सरकार के पैसे दे देने के बावजूद भी, जहां पिछले 1 साल का लक्ष्य, जैसे मैंने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की कि हमने 30% का लक्ष्य रखा था और हमने 32% तक पहुंचाने में कामयाबी पाई है। गोवा ने 100% कर लिया, तेलंगाना ने 99% कर लिया, बिहार ने 80% कर लिया, गुजरात ने 80% क्रॉस कर लिया, हरियाणा ने 75% कर लिया, हिमाचल प्रदेश ने 75% क्रॉस कर लिया, और बंगाल ने पिछले 1 साल 15 महीने में हमारे द्वारा पैसा दिए जाने के बावजूद भी जो 30 लाख कनेक्शंस का लक्ष्य दिया गया था, उसमें से केवल 4,890 कनेक्शंस किए हैं, केवल 4,890। और जिस गति से माननीय मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक देश के हर एक घर तक जोड़ना है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं। जिन प्रदेशों में हम पहली बार चुनाव लड़े, आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमने कभी अपने यहाँ पर इस तरह के कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए। एक बार हम सत्ता में आ जाएंगे तो जहां हमारे प्रदेश में सरकार है, मोदी जी 14 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि कौन बनेगा। इज देयर एनी चांसेस टू बिकम सौरभ गांगुली? मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है मित्र कि इस तरह के विषयों पर हम पहले बात करें। ये मैंने कहा कि वो बंगाल के मराठी में जन्मा हुआ व्यक्ति होगा, वो कोई भी हो सकता है। धन्यवाद। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে আগরপাড়া সেনবাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির একটি চা চক্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিজেপি নেতা গাজেন্দ্র সিং মহাশয়। या धोखे में रह करके हमने गलत लोगों का निर्णय लिया, उसके कारण से आज जो परिस्थिति बंगाल में बनी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश प्रगति कर रहा है। 2021 বিধানসভা নির্বাচনের আগে এদিনের এই চা চক্র থেকে গাজেন্দ্র সিং মহাশয় বিজেপিকে জয়ের লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে গেলেন। তার এই সারাদিনের বঙ্গ সফরের সফর সঙ্গে ছিলাম আমরা। ক্যামেরায় দেবাশিস আচার্য, শুভজিৎ দে, বলরাম মণ্ডল, দীপ ব্রহ্মচারীর রিপোর্ট। সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক।